Good morning, students. Today's our topic is Poisson distribution, which is a part of discrete probability distribution. Now, in discrete probability distribution, first we learn Bernoulli distribution when the only two outcomes for any experiment, success or failure. When Bernoulli trials repeated a finite number of times, then it is converted into binomial probability distribution. And third distribution is Poisson distribution. Now, Poisson distribution is a distribution related to the probability of event which are extremely rare but which have a large number of independent opportunity for occurrence. It means Poisson distribution क्या है? वो probability distribution है जिसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है बट नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका क्या है, लार्ज है. उस केस में अपन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, सर्दी जुकाम खांसी तो बहुत सारे लोगों को होता है बट सर्दी जुकाम खांसी से जो डेथ है बहुत ही रेयर है, तो यहाँ अपन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे. ठीक है. तो और एग्जांपल इसके, द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर मिनट एट सम स्विच बोर्ड, number of death from a disease such as heart attack. This is the example of Poisson distribution. Now the definition of Poisson distribution: a random variable x which can take a random value 0, 1, 2 is said to follow Poisson distribution if its probability mass function is given by probability of x is equals to r e raised to minus m raised to the power r upon factorial r for r equals to 0, 1 to infinite. For m greater than 0, this is said to be parameter of the Poisson distribution, and we say that x is a for x follow the Poisson distribution with parameter m. This is the definition of Poisson distribution. नाउ इसके डेरिवेशन में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज़ होगा वो आपका है ई रेस पावर एक्स का या ई रेस पावर एम 1 प्लस एम स्क्वायर बाय फैक्टर 2 प्लस एम क्यूब बाय फैक्टर 3, जिसको अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एम रेस पावर आर अपॉन फैक्टर आर. फर्स्ट, प्रूव डेट Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution. Now, Poisson distribution can be derived as a limiting case of binomial distribution under the condition n tends to infinite, p tends to 0 and np equals to m. तो ये आपकी लिमिटिंग कंडीशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कब होता है? व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी रेयर. p टेंस टू 0 का मतलब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी 0 है, इट मीन्स नियर टू द 0. और उस केस में n और p का जो मल्टीपल होगा वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, दैट इज m. नाउ वी कैन डिराइव Poisson probability mass function by using binomial distribution. Now binomial probability mass function is NCX p raised to power x q raised to the power n minus x. n number of trials थे, p probability of success and q probability of failure. Now taking the limit n tends to infinite, p tends to 0, np equals to m. n से x को ओपन कर दिया, फैक्टर n minus x into factor x p raised to power x q raised to power n minus x. Now n tends to infinite, लिमिट पुट करने से पहले फैक्टर n को ओपन कर लेते हैं n minus x minus 1 टर्म्स तक. तो फैक्टर n को ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी n, सेकेंड n minus 1, n minus 2, n minus x minus 1 into n minus x factorial upon n minus x factorial into x factorial p raised to power x q raised to power n minus x. n minus x factorial से n माइनस एक्स फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ रिमेनिंग जितने भी n से उन सभी को कॉमन ले लो ना, ये टोटल x फैक्टर्स है, तो n जो कॉमन आएंगे वो हो जाएंगे n रेस्ट फॉर x टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन n. नाउ यहाँ n टेंस टू इन्फाइनाइट लिमिट पुट कर दो, 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है 0, 2 अपॉन इन्फाइनाइट 0, x माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0, 1 इंटू 1 ओनली 1 बचेगा. नाउ n और p दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा np रेस्ट टू द पावर x अपॉन फैक्टर x q रेस्ट पर n माइनस एक्स. ना एन पी इक्वल्स टू क्या आ रहा है m, वैल्यूज पुट कर दो तो यहाँ ये हो जाएगा m रेस्ट पर x अपॉन फैक्टर x और लिमिट ओनली किस पे लगेगी अब q रेस्ट पर n माइनस एक्स को. q की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस पी. ना 1 माइनस पी रेस्ट पर n अपॉन 1 माइनस पी रेस्ट पर x, दोनों पावर्स को सेपरेट कर दिया.
नाउ एन और पी दोनों लिमिट एक साथ अप्लाई नहीं हो सकती, तो फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, बट सेकंड पार्ट ओनली पी की लिमिट अप्लाई हो रही है, तो वी कैन पुट पी इक्वल्स 0, 1 रेस पावर एक्स, ओनली आपका 1 बचेगा। नाउ 1 माइनस पी रेस पावर एन को सॉल्व करने की यहाँ पुट करो पी की वैल्यू m बाय एन, तो आपका प्रोबेबिलिटी फॉर्म हो जाएगा m रेस पावर एक्स अपॉन फैक्टर एक्स, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, p टेंस टू 0, एन पी इक्वल्स टू m, p की वैल्यू आपको पुट करनी m बाय एन। ना ओनली अब n की लिमिट अप्लाई होगी, n टेंस टू इन्फाइनाइट 1 माइनस m अपॉन n रेस्ट टू पावर n, इससे अपन क्या मान सपोज कर लेते हैं u, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पावर फ्रंट में आ जाएगी, तो लॉग u इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट n लॉग 1 माइनस m बाय n, लॉग 1 माइनस x को ओपन कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। नाउ n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग ऑर्डर ऑफ 1 बाय n हो जाएगा, और n टेंस टू क्या आपका इन्फाइनाइट, तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा 0, ओनली यहाँ से क्या बच रहा है माइनस m, तो लॉग u की वैल्यू क्या आई है माइनस m आई है, तो u इक्वल्स टू आपका हो गया e रेज़ टू पावर माइनस m। Now put in equation first, then probability mass function is e raised power minus m raised power x upon factor x, x equal to 0 1 2 3 इनफाइनाइट। ये आपका है पॉइसन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो बाइनोमियल से डिराइव किया है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आपका फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ना मीन की डेफिनेशन आपकी होती है e रेज़ पावर x समेशन ऑफ x पी एक्स की वैल्यू e रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टर x। सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर x में से x कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, x से x कैंसिल आउट हो गया। नाउ फैक्टोरियल नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो 0 पे आपकी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स 0 वाली टर्म पॉसिबल नहीं है, तो आपका समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा x इक्वल 1 से, x इक्वल 1 टू इन्फाइनाइट e रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल, e रेज़ पावर माइनस m समेशन से कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, m रेज़ पावर x अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल। नाउ समेशन को ओपन करो, x इक्वल 1, x इक्वल 2, x इक्वल 3 एंड सो ऑन। नाउ m कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1 प्लस m अपॉन फैक्टर 1 प्लस m स्क्वायर बाय फैक्टर 2, ये आपका एक्सपेंस बन रहा है e रेज़ पावर m का, e रेज़ पावर m से e रेज़ पावर माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीन आपका क्या आ गया m। नाउ वेरिएंस के लिए वैल्यू होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन e रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टर x। ना यहाँ आपको एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, जो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैक्टर x को ओपन करोगे तो फर्स्ट आएगी x टर्म, सेकंड टर्म ओपन होगी x माइनस 1, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्स स्क्वायर को अरेंज करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का अरेंजमेंट हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ना दोनों टर्म्स को सेपरेट मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ई रेज़ पावर माइनस m अपॉन m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टर x प्लस x इंटू ई रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टर x। फैक्टर x को ओपन करो, x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टोरियल, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे भी फैक्टोरियल नेगेटिव आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे भी नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स दोनों वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। समेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 2, समेशन ऑफ x इक्वल टू 2 टू इन्फाइनाइट e रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन x माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस m। फर्स्ट पार्ट में अपन ने निकाला था एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू, वो आपकी क्या है m। नाउ समेशन को ओपन कर लो, e रेज़ पावर माइनस m कॉन्स्टेंट है, x इक्वल टू 2 3 4, ना यहाँ से m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, e रेज़ पावर माइनस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर बाय फैक्टर 2 प्लस m, e रेज़ पावर m, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी e रेज़ पावर m से e रेज़ पावर माइनस m कैंसिल आउट हो गया, m स्क्वायर प्लस m, आपकी वैल्यू आई है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की। क्लियर, तो वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, तो आपकी वैल्यू बच रही है m। तो वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो m, तो मीन और वेरिएंस दोनों जो वैल्यू है वो सेम आ रही है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन है इसका mgf का, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ mxt इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ पावर tx समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट e रेज़ पावर tx इंटू px, पॉइसन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन।
नाउ ई रेस पर टी एक्स और एम रेस पर एक्स पावर सेम है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ई रेस पर टी एम होल पावर एक्स अपॉन फैक्टर एक्स ई रेस पर माइनस एम। ई रेस पर माइनस एम समेशन से बाहर हो जाएगा। नाउ समेशन को ओपन करो, एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 2 एंड सो ऑन। नाउ अगेन ये ई रेस पर एक्स एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं अपन ई रेस टू द पावर एम ई रेस पर टी। नाउ बेस सेम है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ई रेस पर एम ई रेस पर टी माइनस 1। दिस इज अवर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इससे भी अपन मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, जो अपन बाइनोमियल में किया था। सेम प्रोसीजर्स इसमें μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश मोमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है आपका वो रिकरेंस रिलेशन फॉर सेंटर मोमेंट ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ना सेंटर मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, म्यू आर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार रेस पर आर। एक्स बार डिनोट मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मीन क्या है आपका एम, एक्स माइनस एम रेस पर आर। एक्सपेक्टेशन को ओपन कर लो, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला डिस्क्रीट है तो समेशन यूज हो गया, समेशन आर इक्वल 0 टू इनफाइनाइट एक्स माइनस एम रेस पर आर इंटू पी एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू, नाउ यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू एम, डेल म्यू आर अपॉन डेल एम। नाउ एम के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो समेशन और फैक्टर एक्स कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का 1 बाय 1 यू इंटू वी से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, देन ई रेस पर माइनस एम का, और थर्ड एम रेस पर एक्स का। नाउ डी म्यू आर अपॉन डी एम समेशन एक्स टेंस एक्स इक्वल 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टर एक्स कांस्टेंट। फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया अपन एक्स माइनस एम की पावर आर का, वो आपका हो जाएगा आर एक्स माइनस एम रेस पर आर माइनस 1 और माइनस एम का डिफरेंशिएशन माइनस 1 ई रेस पर माइनस एम रेस पर एक्स कांस्टेंट। नाउ एक्स माइनस एम रेस पर आर कांस्टेंट। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ई रेस पर माइनस एम का माइनस ई रेस पर माइनस एम रेस पर एक्स कांस्टेंट। थर्ड ई रेस पर माइनस एम भी कांस्टेंट, एम रेस पर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स एम रेस पर एक्स माइनस 1। नाउ टर्म्स को अरेंज कर दो। फर्स्ट टर्म से माइनस आर को समेशन से बाहर ले लिया, समेशन ऑफ आर एक्स इक्वल 0 टू इनफाइनाइट एक्स माइनस एम रेस टू पावर आर माइनस 1 ई रेस पर माइनस एम अपॉन फैक्टर एक्स इंटू एम रेस पर एक्स। ये आपका मोमेंट्स का ही फॉर्मूला बन रहा है, सेंटर मोमेंट का पावर क्या है आर माइनस 1, तो ये आपकी पावर हो गई म्यू रेस पर आर माइनस 1, तो माइनस आर म्यू रेस पर आर माइनस 1 आपका मोमेंट्स हो गया इस टर्म से। नाउ सेकंड टर्म को भी उसी मोमेंट्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो यहाँ से ई रेस पर माइनस एम रेस पर एक्स कॉमन आ गया, माइनस 1 प्लस एक्स बाय एम। ना इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस एम अपॉन एम आ जाएगा, 1 अपॉन एम कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, और x माइनस एम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर क्या होगी x माइनस एम रेस टू द पावर r प्लस 1 ई रेस पर माइनस एम रेस पर एक्स अपॉन फैक्टर एक्स। अगेन ये मोमेंट्स का फॉर्मूला बन गया, कौन सी मोमेंट बन जाएगी r प्लस 1 म्यू इक्वल्स टू r प्लस 1, वैल्यूज पुट कर दो इसमें। ना म्यू रेस पर म्यू r प्लस 1 मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा m डेल म्यू आर अपॉन डेल एम प्लस आर म्यू आर माइनस 1, एंड दिस इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर सेंटर मोमेंट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इस रिलेशन में आप मोमेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ना फर्स्ट टू वैल्यूज आपकी क्या होती है, म्यू इक्वल टू 0 1 होता है, म्यू 1 इक्वल टू 0, ये सभी के लिए फिक्स है। नाउ इस इक्वेशन में आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो म्यू 2 एम डेल म्यू 1 अपॉन डेल एम प्लस म्यू नॉट इंटू एम। म्यू 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से सेकंड सेंटर मोमेंट आपकी आ रही एम। अगेन आर इक्वल टू 2 पुट करेंगे, एम डेल म्यू 2 अपॉन डेल एम प्लस 2 म्यू 1। म्यू 2 की वैल्यू एम का एम के रेस्पेक्ट डिफरेंस 1 हो जाएगा, ओनली एम बचेगा, तो थर्ड मोमेंट भी आपकी एम ही बच रही है। नाउ आर इक्वल 3 फोर्थ सेंटर मोमेंट म्यू 4 एम डेल म्यू 3 अपॉन डेल एम प्लस 3 म्यू 2। म्यू 3 की वैल्यू आपकी एम है और म्यू 2 भी एम है, दोनों की वैल्यूज पुट करो, एम के रेस्पेक्ट डिफरेंस 1 प्लस 3m, तो आपकी फोर्थ सेंटर मोमेंट आ रही है 3m स्क्वायर प्लस m। तो ये आपका हो गई सेंटर मोमेंट म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4 बाय यूजिंग रिकरेंस रिलेशन। तो ये तीनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, मीन वेरिएंस, MGF एंड रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट जो इनके न्यूमेरिकल अपन कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।